Hello students, in the previous video of botany we have discussed about the classification, all types of classification, artificial classification, natural system of classification and phylogenetic system classification. In this class we will start a new topic, that is herbarium technique. So before starting the topic herbarium techniques, we must know that what is herbarium. So let's make a heading, herbarium. Actually, herbarium is a collection of dried and properly pressed plant specimens according to a system of classification which are available for study, research and reference. So, herbarium is a collection of dried and properly pressed plant specimens arranged according to a system of classification available for study, research and references. तो ये हो गया herbarium. The term herbarium was coined by Linnaeus. Linnaeus ने सबसे पहले herbarium term coin किया था. The world's largest herbarium is Royal Botanic Garden, situated at Kew, England, and in this herbarium over 5 million plant specimens are found. The biggest herbarium of India is Indian Herbarium of Botanical Survey of India, which is situated in Calcutta, and in this herbarium over 1.3 million plant specimens are present. Actually, herbarium specimens are permanent record of plant specimens at a particular place and given time. Therefore, plant specimens should be carefully collected, selected, properly prepared and preserved. तो properly selected होना चाहिए, collected होना चाहिए, and they should be properly prepared and preserved. तो अब हम लोग देखते हैं कि which type of specimens should be collected.
जब हम सर्वे के लिए निकलते हैं, जब हम प्लांट कलेक्शन के लिए निकलते हैं, तो हमें किन प्लांट्स को सिलेक्ट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, we should collect entire vigorously growing typical specimen. Collect entire means पूरा होना चाहिए प्लांट. ऐसा नहीं कि केवल एक लीफ ही आपने तोड़ ली. नो, इट्स रॉन्ग. आपको ऐसे पौधे का चुनाव करना है जिसमें रूट भी हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो और फ्रूट्स हो. सारे पार्ट्स क्या हो? प्रेजेंट. द सेकेंड थिंग इज we must avoid collecting insect damaged specimens. ऐसे प्लांट्स जिसको इंसेक्ट ने डैमेज किया हो, ऐसे प्लांट्स को हम नहीं कलेक्ट करेंगे. थर्ड थिंग इज collect those specimens which contain flowers, fruits and seeds, etc. Fourth important thing is, ये वुडी प्लांट्स के लिए है. अगर प्लांट वुडी है तो we must collect bark and wood also. Next important thing is avoid collecting rare or uncommon plants. ऐसा प्लांट जो बहुत ही क्या हो, अनकॉमन हो या रेयर हो, तो उसे हमें नहीं कलेक्ट करना चाहिए. And the next, which is most important, is we never collect the only plant of a species at a locality. किसी लोकेलिटी में अगर केवल एक ही प्लांट दिख रहा है उस पर्टिकुलर स्पीशीज का, तो आप उसे कभी नहीं कलेक्ट करेंगे. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी मस्ट कीप ऑन इन आवर माइंड व्हेन गोइंग फॉर कलेक्शन. सो नाउ we will talk about field equipments and supplies. जब हम फील्ड पर कलेक्शन के लिए जाते हैं तो हमें किन किन चीजों को अपने साथ रखना चाहिए. The first one is field press. फील्ड प्रेस लकड़ी का या मेटल का बना हुआ एक फ्रेम होता है जिसके बीच में हम प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रॉपरली प्रेस करके रखते हैं. इट इज मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ वुड और मेटल फ्रेम्स और इसका डायमेंशन होता है 12 by 18 inches. The next is dryers and bottles. Dryers and blotters. बड़े बड़े ब्लॉटर्स यूज किए जाते हैं प्लांट स्पेसिमेंट्स को रखने के लिए, प्रेस करने के लिए, और इनका डायमेंशन होता है अप्रॉक्सीमेटली 11
by 16 inches। और कभी कभी हम ओल्ड न्यूज़पेपर भी इसकी जगह पर यूज करते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज्ड। द थर्ड इज straps and ropes। ये भी a pair of rope about 4 to 5 feet length। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो फील्ड प्रेस होता है उसको बांधने का काम करता है। नेक्स्ट इज फील्ड नोटबुक। फील्ड नोटबुक एक छोटा सा कॉपी की तरह होता है, जो आप एक तरह से समझ लीजिए कि स्मॉल फील्ड नोटबुक होता है जिसमें रूल्ड पेजेस होते हैं और इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं फुल डेटा ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन। अब फुल डेटा में क्या क्या होगा देखिए, उसमें डेट, प्लेस, लोकेलिटी, हैबिटेट, उस प्लांट का लोकल नेम और लास्ट में रहता है कलेक्टर नेम, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम। Fifth one is digging and clipping tools। इसमें देखिए मिट्टी खोदने के लिए डिगर्स, हैमर्स, गार्डन क्लिपर्स और नाइफ आता है। इसे भी हमें अपने साथ रखना चाहिए जब हम प्लांट कलेक्शन के लिए जाते हैं। सिक्स्थ इज वैस्कुलम। वैस्कुलम कोई बहुत हुआ चीज नहीं है। वैस्कुलम एक प्रकार का कंटेनर होता है जो कि वैस्कुलम इज अ कंटेनर विच इज मेड अप ऑफ टिन और एल्यूमिनियम शीट का बना होता है। इसका काम क्या होता है? जब हम फील्ड में जाते हैं, अगर हम किसी प्लांट को प्रॉपरली नहीं प्रेस कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम प्लांट को कहाँ रख देते हैं? वैस्कुलम में रख देते हैं। वैस्कुलम में रखने पर कुछ टाइम तक, कुछ समय तक प्लांट की फ्रेशनेस बनी रहती है और फाइनली जब हम लैब में या जहाँ पर हमें पहुँचना रहता है वहाँ जब हम पहुँच जाते हैं तो हम वैस्कुलम से प्लांट को निकालते हैं और फिर उसे ब्लॉटर या ओल्ड न्यूज़पेपर में रख करके प्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट इज collecting bags। collecting bags is nothing, it's just a plastic bag। छोटे छोटे प्लास्टिक बैग होते हैं जिसमें हम सैंपल्स को क्या करते हैं? कलेक्ट करके रखते हैं। Now the next one is collection bottle। collection bottles are glass or plastic bottles with leak proof screw cap and they are used to preserve। कलेक्शन बॉटल में हम प्रिजर्व करते हैं ऐसे स्पेसिमेंट्स को, ऐसे स्मॉल मटेरियल को
जिसे हमें लिक्विड मटेरियल में रखने की जरूरत होती है. सो दे आर यूज्ड टू प्रिजर्व स्मॉल मटेरियल्स इन लिक्विड प्रिजर्वेटिव. लिक्विड प्रिजर्वेटिव, अब देखिए लिक्विड प्रिजर्वेटिव जनरली हम यूज करते हैं FAA. FAA is formalin, acetic acid, and the third one is alcohol, and the ratio of formalin, acetic acid and alcohol is 6:3:1. तो ये रेशियो होता है. FAA एक प्रकार का लिक्विड प्रिजर्वेटिव होता है जो कि हम कलेक्शन बॉटल में पहले से ही रखे रहते हैं, और जब हम फील्ड में जाते हैं तो ऐसे मटेरियल जिन्हें हमें लिक्विड प्रिजर्वेटिव में रखना रहता है उसमें हम रखते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज हैंड लेंस. नेक्स्ट इज हैंड लेंस. हैंड लेंस किसी भी स्मॉल मटेरियल को देखने के लिए, उसे मैग्नीफाई करने के लिए यूज करते हैं. उसके बाद देखिए है मैप्स. मैप्स का यूज करते हैं हम फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेलिटी. लोकेलिटी को डिटरमाइन करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट है कलर चार्ट. कलर चार्ट की क्या जरूरत है? सपोज हमने कोई फ्लावर देखा, उसका कलर हो सकता है इट मे बी डार्क पिंक, लाइट पिंक. सो वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. फ्लावर को हम लेंगे और कलर चार्ट के कलर से क्या करेंगे, मैच करा लेंगे. उससे हमें किसी भी प्लांट पार्ट का एग्जैक्ट कलर पता चल जाता है. सो वी मस्ट कैरी कलर चार्ट व्हाइल गोइंग फॉर कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन. और उसी के साथ साथ हमें एक कैमरा भी अपने साथ रखना चाहिए. सपोज कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसे हम नहीं कलेक्ट कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी एक फोटो ले लेंगे. तो ये कुछ फील्ड इक्विपमेंट्स और सप्लाईज थे. ये था फील्ड सप्लाईज और इक्विपमेंट्स के बारे में. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से प्लांट को प्रॉपरली प्रेस किया जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Till then, thank you and bye.